Good morning, dear students. How are you all? So, dear students, today we are going to start with our new lesson, that is business cycles. Do you know what are business cycles and what are their other names? Business cycles को हम लोग ट्रेड साइकिल्स भी बोलते हैं, हम लोग इकोनॉमिक साइकिल्स भी बोलते हैं. और आपको पता है ये इसको बिजनेस साइकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट आता है वो हमारी बिजनेस के ऊपर आता है, हमारी बिजनेस के ट्रेंड्स में चेंज हो जाता है, हमारी इकोनॉमी के जीडीपी ग्रोथ रेट के अंदर चेंज आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर चेंज आ जाता है. सो सारी चीज़ें बदल जाती हैं जो कि हमारी बिजनेस एक्टिविटी के साथ रिलेटेड होती हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर व्हाट आर वी पीपल गोइंग टू लर्न? Here we are going to learn about the business cycles, the phases of business cycles, the features of business cycles, the leading indicators of business cycle, the indicators of business cycles, examples of business cycles, role of business cycles in the business decision making, and lastly, the causes of business cycle. This is all what we are going to study in this lesson. Now let's get started. So first of all, we would be starting with the different phases of business cycles. But before that, let's introduce a wee bit of the lesson. You know it very well that all the countries have gone through the fluctuations in economic activities. हमारी economic activities of production, consumption, distribution, exchange, इन सब में ups and downs आते रहते हैं और वहाँ पर हमारी economic activities बहुत change होती हैं. Have you ever thought कि economic activities क्यों change हो रही हैं? Due to the business cycles, right? So बच्चे you should remember that यहाँ पर हमारी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ, there is a followed periods of slow growth and even the falling growth. तो इकोनॉमी के अंदर टाइम टू टाइम या periods आते रहते हैं. So the business cycle is a periodic fluctuation. What do you understand by a business cycle? Business cycle is a periodic fluctuation. एंड यू शुड रिमेंबर ये जो पीरियोडिक फ्लक्चुएशन होती है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होती है एंड इट इज़ मेजर्ड इन द रियल जीडीपी. नाउ बच्चे बिफोर टेकिंग इट अप आई शुड टेल यू व्हाट इज़ अ रियल जीडीपी. GDP that is measured at a constant year price is known as a real GDP, right? Constant year is a base year price. जब हम लोग अपनी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ रेट को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोथ रेट को बेस ईयर प्राइसेस पे चेकआउट करते हैं तो दैट इज़ नोन एज व्हाट द रियल जीडीपी. यू नो विच इज़ अ बेस ईयर राइट नाउ 2011-12, राइट? So we are considering a base year as 2011-12 right now. But although these economic fluctuations are recurrent and occur periodically, but they are not regular intervals and are not of a same length. Very important. आपको पता है ये business cycles time to time आते रहते हैं. Have you ever heard about the Great Depression? Yes. Great Depression was in the year 1929. तो ग्रेट डिप्रेशन के अंदर इकोनॉमी अपने बिल्कुल लोवेस्ट लेवल के ऊपर थी. इसके बाद जो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने विटनेस किया दैट वाज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट ऑफ 2000. इसमें भी हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन चले गई थी. एंड इसके बाद जो हम लोगों ने विटनेस किया दैट वाज द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2008-2009. And now what are we going to witness in the present pandemic situation is again going to be one of the consequences and leading to the depression kind of a situation. क्योंकि business activity बहुत down है. Is that clear? So dear students, whenever I talk about all these things, the periodical intervals, when I would talk about the periodical fluctuations, ये periodical fluctuations हमारी business cycles को lead करते हैं. और बिजनेस साइकिल्स का इम्पैक्ट हमारी रियल जीडीपी के ऊपर आता है. मतलब जो जीडीपी हम लोग कांस्टेंट या बेस ईयर प्राइसेस के बेसिस पे चेकआउट करते हैं. इट्स ऑलवेज मेजर इन द टर्म्स ऑफ रियल जीडीपी. बट यू शुड रिमेंबर वन पर्टिकुलर थिंग. टाइम टू टाइम इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आते हैं. लाइक आई टोल्ड यू 1929 ग्रेट डिप्रेशन, 2000 बर्स्ट एंड देन इट वॉज अ ग्लोबल क्राइसिस 2008-2009. And now you never know in the pandemic situation 2020 में भी यही conditions आने वाली हैं. So dear students, all these phases are not staying for long. ये कुछ समय के लिए आती हैं और फिर चले जाती हैं.
They do not have a same length. Is that clear? हम ये नहीं कह सकते ये रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 5 years के बाद आएगा, बिजनेस फ्लक्चुएशन ये वाला प्रॉस्पेरिटी का पीरियड अब नेक्स्ट 2 years बाद आएगा. नो, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट. और ज़रूरी भी नहीं है कि ये रेगुलर इंटरवल्स के बाद हो. नाउ बच्चे लेट्स सी टू इट कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल. Whenever I talk about the phases of a business cycle, bache, you should remember the first is expansion, whom we call boom, recovery, upswing. Second is peak. Peak is also known as boom and prosperity, toppest level. Third, contraction, recession, downswing. We are moving downwards now. Trough, or it is known as depression. Now, bache, let's see to it with the help of this diagram. If I check it out with the help of this diagram, now this is particularly known as what? Peak. What is this known as? Trough. Economy is there at its downfall. When the economy is expanding, this is known as, the blue line is known as expansion. Now economy is at its peak. When economy is at its peak, bache, this is particularly the toppest level again. Now, when economy is moving down, it is known as recession. Economy is totally at its bottom here. This is known as trough, or it is depression. And when economy is progressing further, it is known as expansion. So, dear students, always remember, after every business cycle, you will be having a next one, and after a next one, again a next cycle, then again you are there at the top. Is that clear? So do remember, peak, recession, trough, expansion, again peak. Is that clear? It's going to be followed in a cyclical manner. ये एक cyclical manner के में form में ये form होते हैं. I hope these points are very much clear to you. Now, but let's start thinking about these business cycles now. See to it, in this figure, the 4 business cycles are being stated. The broken line जो है ये हमारी center line. The center line is particularly this line. This line is a line of growth, right? It is a potential GDP. और हम लोग कभी भी potential GDP के अराउंड नहीं मूव करते. हम लोग potential GDP के ऊपर मूव नहीं करते. हम इसके ऊपर या नीचे मूव करते हैं. Is that clear? It shows the rising trend of growth over the long period of time. Now, the figure starts through trough. Trough, I told you, is the lowest point where the overall economic activities or the level of production, consumption, income, output, employment, ये सब अपनी lowest level के ऊपर हैं. With increase in economic activities, अब economy moves towards expansion. जैसे ही गवर्नमेंट इंटरवीन करना शुरू करती है, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ आनी शुरू होती है, तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स व्हाट? द सेकेंड फेज, एंड दिस सेकेंड फेज इज नोन एज एक्सपेंशन. आफ्टर द एक्सपेंशन बच्चे, व्हाट डू यू हैव? यू हैव द टॉप मोस्ट लेवल, एंड द टॉप मोस्ट लेवल इज नोन एज व्हाट? पीक. Right? So with increase in economic activities now, when the economy is moving towards expansion, after the expansion, आप लोगों को पता है हम कंटिन्यूसली इसी तरह से तो ग्रो नहीं करते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते वी रीच टू द पीक. इकोनॉमी स्टार्ट्स कंट्रैक्टिंग नाउ. अब इकोनॉमी थोड़ा सा डाउन आना शुरू कर देती है, और जब इकोनॉमी थोड़ा सा डाउन आती है, इट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्शन. क्या, कौन सी स्टेज बोलते हैं इसको? कॉन्ट्रैक्शन. बच्चे, कॉन्ट्रैक्शन फेज सेट्स इन एंड कंटिन्यूज टिल इट रीचेज द लोएस्ट पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, एंड दिस टर्निंग पॉइंट जो लोएस्ट है इज नोन एज व्हाट? ट्रॉफ. एंड दीज आर द बिजनेस साइकिल्स. सो डू रिमेंबर, ट्रॉफ, expansion, peak, contraction, again trough. And this process goes on and on. And we move along this trend line, you should always remember. Now, dear students, let's move ahead. So once again, let's revise all these concepts. The fluctuations in the aggregate economic activity. Now, what is aggregate? The total economic activity of production, consumption, exchange that an economy experiences over a period of time, that is a period of prosperity, जिसके साथ साथ हमारी economic downturns भी आ जाती हैं, is known as business cycles, or you call it a trade cycle.
Dear students, you should remember one particular point. Always remember, firstly, you have what? You have a trough here. Is that clear? First point. Then when it is expanding, you have a second point, that is expansion. Third point is known as peak. Fourth is known as contraction. And fifth again is known as trough. And from here, the new cycle again starts. सो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, रेपिटेटिव नेचर के अंदर जब हमारे ये सारे के सारे बिजनेस फ्लक्चुएशंस होती हैं, जब हमारी ये मतलब फेजेस आती हैं, सो दिस फेजेस कम इन अ रेपिटेटिव मैनर. इज दैट क्लियर? बट इनका टाइम फ्रेम नहीं होता, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे, लेट्स मूव अहेड, एंड व्हेन वी मूव अहेड वी हैव अ नेक्स्ट पॉइंट. बिजनेस साइकिल्स रेफर टू alternate expansion and contraction of overall economic activity as reflected in fluctuations and measures of aggregate economic activity like GDP, employment and income. बच्चे इसका क्या मतलब हो गया कि जो हमारी जो बिजनेस साइकिल्स है ना, इज दैट क्लियर? व्हेन एवर आई टॉक अबाउट अ बिजनेस साइकिल्स रेफर टू ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन. मतलब हमारा जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी है वो एक्सपैंड भी करता है और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है. एंड दीज फ्लक्चुएशंस आर मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक GNP के टर्म्स में, नेशनल प्रोडक्ट के टर्म्स में, एम्प्लॉयमेंट और इन द टर्म्स ऑफ इनकम. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अ ट्रेड साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड. कभी भी जब हम ट्रेड साइकिल्स को चेकआउट करते हैं तो यू शुड रिमेंबर देयर इज़ ऑलवेज आइदर अ पीरियड ऑफ गुड ट्रेड और देयर इज़ अ पीरियड ऑफ बैड ट्रेड. इज दैट क्लियर? कौन कौन से पीरियड्स होते हैं? देयर इज़ अ पीरियड ऑफ गुड ट्रेड एंड देयर इज़ अ पीरियड ऑफ बैड ट्रेड. गुड ट्रेड का क्या मतलब होता है बच्चे? जहाँ पे राइजिंग प्राइसेस हैं, लो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है इकोनॉमी के अंदर. और बैड ट्रेड का मतलब कहाँ पे होता है? जहाँ पे प्राइसेस की लेवल बहुत डाउन है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब कोई ग्रोथ नहीं है. दैट इज़ नोन एज अ बैड ट्रेड. सो हर एक तरह की इकोनॉमी गुड ट्रेड को भी फेस करेगी और बैड ट्रेड को भी फेस करेगी ड्यू टू दीज ट्रेड साइकिल्स. सो बच्चे, हाउ मेनी फेजेस आर देयर नाउ? एक्सपेंशन इज ऑल्सो नोन एज बूम और अपस्विंग. इज दैट क्लियर? हम अभी एक्सपैंड कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं. सेकेंड, इट इज़ पीक. पीक का मतलब टॉप मोस्ट लेवल, प्रॉस्पेरिटी पीरियड. थर्ड इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन, जिसको आप लोग डाउन स्विंग भी बोलते हो और रिसेशन भी बोलते हो. एंड इन द लास्ट बच्चे वी हैव अ ट्रॉफ. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रॉफ? ट्रॉफ मीन्स डिप्रेशन. What is the meaning of trough? Trough means depression. Okay, bache, let's talk about this trend line. I told you about this trend line. The trend line is indicated in the above diagram, represents a steady growth. क्या represent कर रही है बच्चे? You should remember it is expressing a steady growth line in the growth of an economy where there are no business cycles. यहाँ पर कोई भी हमारा business cycle नहीं है. Is that clear to all of you? So what is a trend line? A trend line is a line that shows a steady growth line in an economy. लेकिन उस steady growth line के ऊपर there are no business cycles, right? Now, so dear students, now we are going to start with the features of the business cycles. बच्चे, जो business cycles होते हैं इन सबके distinct phases of expansion, peak, contraction और trough होता है. मतलब अलग अलग phases में आता है ये. और ये फेजेस आपको ये नहीं बताएंगे कि बहुत स्मूथनेस होगी और बहुत रेगुलरिटी होगी. मतलब ऐसा नहीं होगा कि अभी एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन के बाद पीक तो थोड़ी देर के लिए आएगा, बट इमिडिएटली द कंट्रैक्शन कैन बी देयर. तो इनका ड्यूरेशन भी ज़रूरी नहीं है कि सेम होगा, कि अगर एक्सपेंशन इज़ फॉर 4 months, पीक इज़ फॉर 2 months एंड देन कंट्रैक्शन इज़ फॉर 3 months. नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर. कोई भी रेगुलर इंटरवल्स यहाँ पर नहीं होते हैं. और बच्चे, आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी जो लेंथ है ना यहाँ पर, वो लेंथ सेम नहीं होगी. इज दैट क्लियर? द लेंथ ऑफ अ ट्रेड साइकिल इज़ नेवर द सेम. सो दिस पॉइंट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लेंथ होती है ट्रेड साइकिल की या बिजनेस साइकिल की, वो कभी भी सेम नहीं होती और ना ही डेफिनेट होती है. इज दैट क्लियर?
So now, बच्चे, just try to understand. We move to the next point. And when I move to the next point, the second is the business cycles occur periodically, although they do not exhibit the same regularity. Yes, they occur in the different time periods. Now, बच्चे, just see to it. When I talk about, everybody might have heard about Great Depression, और मैंने आपको Great Depression के बारे में इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था. सो ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो हम लोगों ने नेक्स्ट डिप्रेशन को विटनेस किया था, दैट वाज इन द ईयर ऑफ बबल बर्स्ट 2000, राइट. फिर 2000 के बाद अगेन सी, अब यहाँ पर कितने ईयर्स का गैप आ गया, अप्रॉक्सीमेटली 70 ईयर्स का. अब आफ्टर 70 ईयर्स, जब 2000 में हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट आया, उसके बाद हमारे पास जो नया ग्लोबल क्राइसिस अराइज हुआ, दैट वाज जस्ट 7 ईयर्स आफ्टर 2008-09. तो क्या ये सेम पीरियड्स के डिफरेंस के ऊपर हो रहा है? नो. सो दे अकर periodically, लेकिन दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम रेगुलरिटी. वो सेम पीरियड की रेगुलरिटी नहीं होगी. नाउ बच्चे, लेट्स सी द थर्ड पॉइंट. The duration of business cycles vary. Again, it was like basically I had cleared it to you. हमारे ये जो फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट्स हैं, ये सारे इंटर रिलेटेड ही हैं. सो व्हाट इज़ इट? यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी हमारा यहाँ पर बिजनेस की रेगुलरिटी है वो कभी भी सेम नहीं है, और जो इनका ड्यूरेशन भी है वो भी सेम नहीं है, राइट. दे अकर अगेन एंड अगेन, but not always at regular intervals. See, 1930 Great Depression, then after 70 years 2000, then again after 7 to 8 years we have one more worldwide depression. और अब पेंडेमिक की सिचुएशन है और आपको पता है सारी की सारी इकोनॉमीज आर अगेन इफेक्टेड. इज दैट क्लियर? सो बच्चे, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि ना तो ये कभी रेगुलर इंटरवल्स के बाद होते हैं और ना ही ये सारे के सारे साइकिल्स सेम लेंथ के होते हैं. Some business cycles have been long lasting for several years, while others have short ending in 2 to 3 years. Is that clear? तो इनके ये जो trends हैं, they tend to differ, right? Let's move ahead. Next is particularly the intensity of fluctuations. बच्चे, when I talk about the intensity of fluctuations, you should be remembering one particular point, that the intensity of fluctuations also varies. Is that clear? It is not necessary to have a same growth rate. मतलब अगर लास्ट ईयर हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 8% GDP था, तो ज़रूरी नहीं है कि इस साल हमारा ग्रोथ रेट जो होगा वो 8% ही होगा. ग्रोथ रेट कैन डिफर फ्रॉम 8% to 7% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, और इतना ही नहीं, बिजनेस कंडीशंस को देखते हुए 10% भी हो सकता है, right? So always remember the intensity of fluctuations varies here, and it is not necessary कि हमारा को जो expansion phase के अंदर या किसी और phase के अंदर जो rates of growth चल रहे हैं वो बिल्कुल same रहेंगे. Is that clear? Next point, let's try to understand. It is difficult to predict the turning points. मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारे जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो कौन से होने वाले हैं. What do you understand by the turning points, बच्चे? Let's see to it. Like, no economy follows a perfectly timed circle. They vary in intensity and length. There is no time pattern which they follow. मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है कि कौन सा एक टर्निंग पॉइंट होगा एक बिजनेस का. इमिडिएटली एक्सपेंशन कब चल रहा है और इमिडिएटली पीक कब आ जाएगा, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी यू कैन नॉट से कि हाँ अभी तो एक्सपेंशन का पीरियड चल रहा है एंड कल ही मेरे लिए पीक होगा. नो, इट कैन नॉट बी देयर. इज दैट क्लियर? नो इकोनॉमी फॉलोज अ परफेक्टली टाइम्ड सर्कल. कोई भी इकोनॉमी के अंदर मीन्स इंडियन इकोनॉमी हो जाए, चाहे अमेरिकन इकोनॉमी हो जाए, चाहे यूरोप की इकोनॉमी हो जाए, कोई भी एक परफेक्टली टाइम्ड साइकिल को फॉलो नहीं करती है. दे वेरी इन इंटेंसिटी एंड लेंथ. इंटेंसिटी और लेंथ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होता है. देयर इज़ नो सेट पैटर्न विद विच दे फॉलो. इज दैट क्लियर? कोई भी एक सेट पैटर्न नहीं है जो फॉलो करते हैं. नाउ बच्चे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. Next point that we people are going to take up is the business cycles generally originate in a free market economy. And बच्चे, you know which is a free market economy? Capitalist economy. Is that clear? तो free market economy के अंदर generally ये यहाँ पर arise होते हैं. They are all pervasive as well. Disturbances in one or more sectors get easily transmitted to all the sectors. Yes. What about the sectors now?
अगर सपोज करो कि रियल एस्टेट का सेक्टर डाउन जा रहा है, रियल एस्टेट इज़ प्रॉपर्टी, तो उसका धीरे धीरे इम्पैक्ट आप लोगों के कंज्यूमर सेक्टर के ऊपर भी आ जाएगा, उसी का इम्पैक्ट आगे प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट के सेक्टर के अंदर अगर प्रॉपर्टी का बिजनेस डाउन है तो आगे लोग अभी घर बनाएंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, घर नहीं बनाएंगे तो उनके पास आगे इनकम का लेवल कम हो जाएगा। तो हर कोई सेक्टर एक एक कर कर इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगा, कंजम्पशन के अंदर कमी आ जाएगी। अगर कंजम्पशन के अंदर कमी आ जाएगी तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? इज़ दैट क्लियर, राइट और नॉट? तो प्रोड्यूसर आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इसीलिए जब एक सेक्टर के अंदर डाउनफॉल आता है, धीरे धीरे बाकी सेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? द इफेक्ट कैन बी शिफ्टेड स्लोली एंड स्लोली टू द अदर सेक्टर्स एज वेल. I hope this point is clear now. Now, let's move ahead towards the next feature. Which is the next feature now, बच्चे? Although all the sectors are adversely affected by business cycles, some sectors like capital good industries, right? Some industries जो हैं, जैसे कि हमारी capital good industries आ गई, हमारी consumer good industries आ गई, are disproportionately affected. Compared to agriculture sector, the industrial sector is more prone to adverse effects of trade cycles. बच्चे वाई? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर तो हमने प्रोडक्शन ही करनी है एग्रीकल्चरल गुड्स की, एंड दीज एग्रीकल्चरल गुड्स आर ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़. सो दैट्स वाई जहाँ पर बेसिक नेसेसिटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो हमारी थोड़ी कम इफ़ेक्टेड होती हैं. इज़ दैट क्लियर? इसी तरह से कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री के अंदर भी, चाहे अभी भी अगर आप देखो पेंडेमिक की सिचुएशन है, लेकिन कंज्यूमर गुड्स, राशन शॉप्स ये तो ऑल टाइम ओपन थी, तो दे वर लीस्ट इफेक्टेड. इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज हाईली इम्पैक्टेड. इज़ दैट क्लियर? अब कोई भी अगर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री है वो हाईली इम्पैक्टेड थी. क्लियर और नॉट? इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना इफेक्टेड था, राइट? सो यू शुड रिमेंबर, ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेक्टर पे सेम इफेक्ट हो. दे आर इफेक्टेड बट इनकी जो इंटेंसिटी ऑफ इफेक्ट होती है दे माइट डिफर, राइट? अभी तो प्रेजेंट सिचुएशन से ही आप चेकआउट कर सकते हो. नेक्स्ट इज पर्टिकुलरली द 8th point. बच्चे, when I take up your 8th point, business cycles are exceedingly complex phenomena. They do not have a uniform characteristics and causes. बच्चे, really very important. Now just try to understand, सारे के सारे business cycles, they do not have a same characteristics and causes. They are caused by varying factors. It is difficult to make an accurate prediction of trade cycles before their occurrence. मतलब हम कोई prediction नहीं कर सकते जब तक वो आ नहीं जाते हैं. Is that clear? See to it, let's take an example and understand. 1929 के अंदर, इससे पहले countries के मतलब all the countries were ये it started from Europe basically. तो all the countries were there into a world war like of a situation. Is that clear? इकोनॉमी के अंदर बहुत डाउनफॉल था, पैसे की कमी थी, क्लियर, जिसके कारण से लो इनकम, लो आउटपुट और लो एम्प्लॉयमेंट. मोरओवर उससे पहले हमारा क्लासिकल थॉट चलता था, और वो क्लासिकल्स क्या बोलते थे कि अगर इकोनॉमी में कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट है ना तो गवर्नमेंट ही मतलब वहाँ पर इट वाज ऑटोमेटिकली गोइंग टू बी एडजस्टेड. बट एट दैट टाइम द सिचुएशन कुड नॉट बी हैंडल्ड, राइट? कभी भी सप्लाई ने अपनी डिमांड को क्रिएट नहीं किया क्योंकि वो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन थी. Then how did economy revive? Then the Keynesian viewpoint came into being and Keynes said, इकोनॉमी को हम खुद रिवाइव नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट को आना चाहिए और गवर्नमेंट हमें हेल्प करेगी रिवाइव करने के अंदर. इज़ दैट क्लियर? तो यही हुआ 1929 के अंदर जब हमारा ग्रेट डिप्रेशन था. तो हाउ डिड वी रिकवर? We recovered only due to the interference of the government. Is that clear? गवर्नमेंट ने लोगों के लिए रोड्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की कोशिश की, जिससे कि इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट आया. अब अच्छा, लेट्स सी द नेचर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन. आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट आया 2000 के अंदर. इस पीरियड के अंदर इंटरनेट बेस्ड कंपनीज थी वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी. इट वॉज बेसिकली, इसको हम .com बबल भी बोलते हैं. इज़ दैट क्लियर? 1997 से 2000 का बबल, राइट? तो यहाँ पर द मार्केट्स वर वेरी ओवर ऑप्टिमिस्टिक, इन्वेस्टर्स वर लेस कॉशियस एंड दे गेव राइज टू स्टॉक प्राइजेस ऑफ .com कंपनीज.
इज दैट क्लियर? तो इसी के कारण से यहाँ पर ज़्यादातर जो इम्पैक्ट आया था वो .com कंपनीज़ के अंदर आया था। .com कंपनीज़ ने अपनी जो प्राइजेस थी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेरिएशन कर दिया था, जिसके कारण से दे हैव टू कोलैप्स। इज दैट क्लियर? अब बच्चे इसी के बाद देखो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जो कि यूएस फाइनेंशियल मार्केट से स्टार्ट हुआ था। इज दैट क्लियर? बैंक्स ने धड़ाधड़ लोन्स देने शुरू कर दिए विदाउट चेकिंग ऑल द वेयर एंड अबाउट्स, एंड ऑटोमेटिकली द इकोनॉमी केम टू अ डाउनफॉल। क्लियर? सो यहाँ पर जितने भी सर्कमस्टांसेस होते हैं वो अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं ना। अगर हम आज की बात करते हैं तो पेंडेमिक सिचुएशन है। पेंडेमिक सिचुएशन सी फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, फ्रॉम चाइना से स्प्रेड होते होते इट इज़ देयर इन इंडिया एज वेल, ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ग्रैब्स। लेकिन एक सिर्फ चाइनीज़ इकोनॉमी है जो थोड़ी सी बेटर पोजीशन में है, और बाकी इकोनॉमीज़ आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डाउनफॉल, राइट? कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो अनइफेक्टेड रह जाए। So that's why, dear students, you should always remember that business cycles are exceedingly complex phenomena and इनके किसी के भी uniform characteristics नहीं होते हैं. Is that clear? They have a different characteristics and we cannot predict them also. Clear? Now बच्चे let's move ahead towards the next point. Next point is your 9th point. Repercussions of business cycles get simultaneously felt on nearly all the economic variables. Yes, बच्चे you should remember it's a very important point. What are the repercussions? Repercussions का मतलब होता है effect. Is that clear? मतलब हमारे को जो effect है वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे आराम से मिल जाता है. Just try to understand. आप लोगों के पास इकोनॉमी के अंदर अगर एक सेक्टर डिफेक्टेड है तो उस सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी इफेक्टेड होगी, आउटपुट का लेवल भी इफेक्टेड होगा, इनकम का लेवल तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो जाएगा. तो अगर एक सेक्टर में इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्टेड है तो उसका नेचुरल है इफेक्ट दूसरे सेक्टर्स के ऊपर आएगा ही आएगा. और धीरे धीरे हमारी पूरी इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, इंटरेस्ट, ट्रेड एंड प्राइस लेवल्स आर इफेक्टेड. नाउ इट इज़ अ रियल एग्जाम्पल जो कि आजकल जा रहा है. कुछ ना कुछ तो डाउनफॉल इकोनॉमी के अंदर है ड्यू टू द पैंडेमिक सिचुएशन, बट सी द प्राइसेस, इवन द वेजिटेबल प्राइसेस आर सोरिंग हाई, इजंट इट? कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहा, कहीं पे भी शॉपकीपर के पास जाओ, दे आर नॉट हैविंग दैट लेवल ऑफ आउटपुट. एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी इफेक्टेड है, कितने लोगों को तो ले ऑफ्स दे दी गई हैं. इज दैट क्लियर? कितने लोगों की जॉब्स चले गई हैं. कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है. कंजम्पशन पैटर्न के अंदर भी बहुत इफेक्टेड है. इवन बच्चे अगर, लेकिन अब इसी समय जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब बैंक्स व्हाट डू दे थिंक कि इकोनॉमी को रिवाइव करना है, कोई ना कोई हमारे को पैकेज देना पड़ेगा, तो दे आर गिविंग द लोन्स एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. इज दैट क्लियर? सो एवरीथिंग इज इफेक्टेड इन एन इकोनॉमी. सो दिस इज अ इफेक्ट और अ फीचर ऑफ अ बिजनेस साइकिल. क्लियर? नाउ let's move ahead towards the next one. 10th point. Business cycles are contagious and are international in character. बच्चे इसका क्या मतलब हो गया? They are contagious and international in effect. बच्चे इस लाइन का ये मतलब होता है कि they have an international character. They begin in one country and mostly spread to the other countries through trade relations. This is the example being explained. We can take it the pandemic situation. Pandemic situation में economic downfall is there. It started from China to America, then again it spread to all over the country, all over the world, right? So there is a downfall in income, output, employment. अकेली हमारी country के अंदर नहीं है, सारी countries की GDP is worstly affected. Is that clear? So this means all the countries are interrelated in the terms of ट्रेड साइकिल्स. इज दैट क्लियर? क्योंकि हर एक कंट्री के एक दूसरे के साथ ट्रेड रिलेशंस होते हैं. अगर ये पेंडेमिक की सिचुएशन है, अगर एक कंट्री दूसरे के साथ ट्रेड नहीं कर रही है तो दूसरे कंट्री का तो जो इनपुट होता है, जो पैसा बाहर से आना है, वो तो कम ही हो गया. तो ऑब्वियसली उस कंट्री का भी जीडीपी थोड़ा कम हो गया. सो दिस वेज वी वुड बी सेइंग दैट all the countries are highly related with each other. Clear? Next point बच्चे, let's move ahead towards the 11th. See the 11th point now. What is an 11th point? आप लोगों को पता है causes की जब हम बात करेंगे तो हमारे causes दो तरह के हो सकते हैं, external causes also and internal causes also. Is that clear?
एक्सटर्नल कॉजेज़ को हम लोग एक्सोजीनियस फैक्टर्स बोलते हैं, जो कि बाहर से आके इम्पैक्ट करते हैं, और इंटरनल कॉजेज़ को हम लोग एंडोजीनियस फैक्टर्स बोलते हैं, या देयर कैन बी अ बिजनेस साइकिल ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑल्सो। अब जो पेंडेमिक सिचुएशन के कारण जो हम अपने बिजनेस पे आज इफेक्ट फील कर रहे हैं, दैट इज़ एन एक्सोजीनियस फैक्टर। इज दैट क्लियर? Now, बच्चे, let's see to the last point. And which is the last point? Business cycles, if we say, business cycles have some serious consequences on the well-being of a society. Yes. Well-being of a society, how is it impacted? Income effect हो गया, output impact हो गया, employment effect हो गया. तो once अगर आपके पास employment नहीं है तो आप पैसा कहाँ से earn करोगे? From where are you going to earn your living? Is that clear? So highly affected is what? Y, Q and N in an economy. What is Y? Income. Q is output and N is employment. और अगर आपके पास ना तो Y का कोई सोर्स है, ना आप लोग ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करो जिससे कम Y आने वाला है, और ना ही आपके पास एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी के अंदर, तो आप अपनी लिविंग को कैसे अर्न करोगे? हाउ आर यू गोइंग टू फीड योर फैमिली? So that's why business cycle has a direct impact on the well-being of a society. So dear students, I think the features of business cycles might be clear to you now. Now in the next topic, we are going to start with the phases of business cycle. So bache, let's start with the phases of business cycle. In the first phase, bache, what are we going to talk about? We are going to talk about expansion. Do you know what is expansion? Expansion का मतलब होता है when there is increase in the business activity. There is increase in the level of income. There is increase in the level of economic activity. हमारा national output बढ़ जाता है, employment बढ़ जाता है, aggregate demand, capital, consumer expenditure, sales, profit. There is rising stock prices and even the bank credit. जब इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही होती है बच्चे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल डायग्राम. यू नो दिस इज़ अ ट्रेड साइकिल. सो दिस इज़ योर ट्रेंड लाइन. नॉट दिस पीरियड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पीरियड. दिस पीरियड इज़ नोन एज एक्सपेंशन. जब इकोनॉमी थोड़ा सा ग्रो कर रही होती है, एक्सपैंड कर रही होती है, दैट पीरियड इज़ नोन एज एक्सपेंशन. इज दैट क्लियर? इसके अंदर हमारा इनकम, देर इज़ इंक्रीज इन इनकम, देर इज़ इंक्रीज इन आउटपुट, देर इज़ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, कैपिटल एंड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, सेल्स बढ़ जाती हैं, प्रॉफिट्स का लेवल बढ़ जाता है. मतलब एवरीथिंग इज़ ऑन द इंक्रीजिंग ट्रेंड इन एन इकोनॉमी, राइट? नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट there is a phase continues till there is full employment of resources. ये फेज़ कब तक कंटिन्यू होता है? जब तक इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज ना हो. इज दैट क्लियर? एंड प्रोडक्शन इज एट इट्स मैक्सिमम पॉसिबल लेवल यूजिंग द अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. और हमारी जो इकोनॉमी है, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट होगा यूजिंग द अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के साथ आपके पास यहाँ पर क्या होगा? यू शुड बी रिमेंबरिंग देयर इज़ पर्टिकुलरली व्हाट द मैक्सिमम पॉसिबल लेवल यूजिंग ऑल द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. नाउ बच्चे, जस्ट सी टू इट. इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट ज़ीरो. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट? इनवॉलेंट्री का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अब हर किसी को काम मिल रहा है जो कि काम करना चाहता है. सो डू रिमेंबर, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट दो तरह की होती है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री का मतलब आप खुद से अनएम्प्लॉयड रहना चाह रहे हो. इनवॉलेंट्री का मतलब आप काम तो करना चाह रहे हो लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा एट एग्जिस्टिंग वेज रेट. सो यहाँ पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं, ऑलमोस्ट ज़ीरो है, क्योंकि ऑल दोज हु वांट टू वर्क दे आर गेटिंग द वर्क. फुल एम्प्लॉयमेंट है. Only frictional unemployment. But you should remember which type of unemployment is existing here. Frictional unemployment, as well as some amount of structural unemployment. Frictional unemployment का क्या मतलब है? जैसे कि आपने जॉब चेंज करनी थी कुछ समय के लिए, लाइक फॉर 10 days, 20 days, 30 days आप अनएम्प्लॉयड रह गए, ठीक है? या आपकी कोई स्ट्राइक हो गई कंपनी के अंदर तो वर्क उस टाइम के लिए सस्पेंडेड है. सो दैट इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट.
इज दैट क्लियर? या आप एक प्लेस से दूसरी जगह पे नहीं जाना चाह रहे हो, तो इसीलिए आप एक अप्रोप्रिएट जॉब ढूंढना चाह रहे हो। जैसे कि यू डोंट वांट टू गो फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर एंड वर्क, तो आप बैंगलोर नहीं जाना चाहते, इसीलिए आप अपनी जॉब अभी दिल्ली के अंदर ही ढूंढ रहे हो। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ व्हाट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ना बच्चे, एक और तरह की अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट हो सकती है एंड दैट इज़ नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई, उसके कारण से कोई यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो गई। इज दैट क्लियर? कैपिटल की कमी होने के कारण से कोई इंडस्ट्री बंद हो गई, जिसके कारण से अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। दैट इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सो ऑलवेज रिमेंबर, in the phase of business cycle, first point, let's revise it, इकोनॉमिक एक्टिविटी अब बहुत हायर लेवल के ऊपर होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज होती है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, लेकिन हाँ, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट टू सम पॉइंट कैन एग्जिस्ट। बच्चे, लेट्स सी अबाउट द प्राइसेस नाउ। हमारी जो प्राइसेस होती हैं बच्चे, द प्राइसेस दे एंड द कॉस्ट टेंड टू राइज फास्टर। कमोडिटी की प्राइसेस भी ज़्यादा बढ़ती हैं, कॉस्ट भी बढ़ती है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो अकर्स एट अ फास्टर रेट। अब लोगों को लगता है कि हाँ, ये बिजनेस एक्टिविटी के लिए ना बहुत अच्छा पीरियड है, तो इतना अच्छे पीरियड के अंदर वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज एक्सपेंशन हो रहा है, सब कुछ ग्रोथ हो रहा है। तो आप लोग वैसे भी यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो और आप लोग इन्वेस्टमेंट का लेवल को बढ़ा देते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से ग्रोथ आने ही वाली है। सो यहाँ पर एक और चीज़ हो जाती है बच्चे कि लोगों के पास इकोनॉमी में पैसा अच्छा है, इसीलिए दे डिमांड ऑल द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट आर दे गोइंग टू डिमांड? दे आर गोइंग टू डिमांड ऑल द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हियर, राइट? One very important point, and that is what? There is increasing prosperity and high standards of living of the people. क्योंकि लोगों के पास बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, लोगों की यहाँ पर कंज्यूमर का स्पेंडिंग भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा है, क्योंकि बिजनेस से इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। सो बिजनेस कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन का लेवल ज़्यादा है, फैक्टर इनकम जो कि हम रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस के फॉर्म में ले रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा है। सो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्टमेंट का लेवल इज़ मच मोर। सो बच्चे, द ग्रोथ रेट eventually slows down and reaches to peak. Now see to it, very important. Whenever we are heading towards the peak, you know what is a peak one? This is known as peak. जब इकोनॉमी टॉप के ऊपर है तो ये पीक पीरियड हो जाएगा। डायग्राम के अंदर चेक करो, मैंने एरो के साथ एक्सप्लेन किया है। तो ये जो पीक के पीरियड पे पहुंचने के टाइम पे हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। Do remember, every point has a question, so that's why I'm focusing on it. So please try to understand. By the time economy reaches on the peak, यहाँ पर expansion से peak पे आते हुए economy eventually slows down. Is that clear? Okay. So this expansion का phase is perfectly clear to you. Now, dear students, we switch over to the next phase, and that is known as a phase of peak. What do you understand by peak? We'll be understanding with the help of a same diagram now. बच्चे, when I draw this diagram, you know it very well. हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ आ जाता है? We have these straight cycles. Is that clear? This is your trend line. Now, economy during the time period of peak is particularly where economy is at its top. Is that clear? Economy कहाँ पे है? हमारे टॉपेस्ट लेवल के ऊपर है। So just see to it, this level. This level that I wanted to express is known as what? Peak. कौन सा लेवल है? Again I am expressing it out. Just wait for us. Let's see what is a peak now. Peak refers to the top of the highest point of business cycle. What is peak? Peak is a top of the highest point of a business cycle. So let's see it diagrammatically here. But when I am talking about a peak now, you should be understanding. Let me draw the diagram first of all to explain it. This is a trend line. Now, but just see to it, what is a peak here? I'm just going to express it to you with the help of a arrow. This is known as peak. What is this known as? This is known as peak. Economy is at its topmost level.
बट आपको पता है एक्सपेंशन से पीक पे आते आते थोड़ा सा हमारा जो रेट होता है वो डाउन हो जाता है, राइट। नाउ बच्चे जस्ट सी टू इट, इन द लेटर स्टेजेस ऑफ एक्सपेंशन इनपुट्स आर डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन। हमारे को जो इनपुट्स होते हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका था, क्योंकि द अवेलेबिलिटी इज़ लेस देन रिक्वायरमेंट एंड दीज इनपुट प्राइजेज राइजेस। अब क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो गई है, इज़ दैट क्लियर, ठीक है, लेस दैन द रिक्वायरमेंट मतलब सप्लाई कम है और लोगों की डिमांड ज़्यादा है, देयरफॉर ऑटोमेटिकली स्कैसिटी अराइजेस। उस स्कैसिटी के कारण से इनपुट प्राइसेस क्या कर जाते हैं बच्चे, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इनपुट प्राइसेस टेंड टू इंक्रीज हेयर। हमारे जो इनपुट प्राइसेस होंगे अब वो क्या हो जाते हैं, दे टेंड टू इंक्रीज, इज दैट क्लियर। सो बच्चे यू शुड रिमेंबर इनपुट प्राइसेस बढ़ गए। अब इनपुट प्राइसेस के बढ़ते ही बच्चे इम्पैक्ट किसके ऊपर आने वाला है, हमारे आउटपुट के ऊपर। आउटपुट प्राइसेस ऑल्सो टेंड टू इंक्रीज, आउटपुट प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे जिसके कारण से कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत एक्सपेंसिव हो गया। दिस कॉजेज ग्रेटर स्ट्रेन ऑन फिक्स्ड इनकम अर्नर्स, जो कि डेली वेज अर्नर्स हैं या जिनकी की मंथली सैलरीज आती हैं, उन पे बहुत इम्पैक्ट आ गया। इज दैट क्लियर बच्चे, इट इज़ द सेम मैनर, वेजेस कैच प्राइसेस, प्राइसेस कैच वेजेस हेयर, इज दैट क्लियर। तो बच्चे ऑटोमेटिकली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ, जो कंज्यूमर्स होंगे ना, दे बिगिन टू रिव्यू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब वो सोचेंगे कि जो खर्चा वो अपने घरों पे कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन, इन द फॉर्म ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, उसको थोड़ा कम कर दें। इज दैट क्लियर। एक्चुअल डिमांड डस स्टैग्नेट्स, जब यहाँ पर इन्होंने खर्चा कम करना शुरू कर दिया तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है वो भी इकोनॉमी में कम हो जाएगा। एंड दिस कम्स एंड लीड्स टू एन एंड ऑफ द एक्सपेंशन स्टेज। Peak occurs when economic growth has reached a point where it will stabilize for a short time. बच्चे peak can be for a month also. Is that clear? It can be for a year also. But do remember, यहाँ पर जैसे धीरे धीरे आते हुए अब हमारी जब स्टैग्नेट होने लग जाती है एक्चुअल हमारी डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, तो हमारा एंड ऑफ एक्सपेंशन स्टेज आ जाता है, पीक आकर करती है। और यहाँ पर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, please try to understand. Growth has reached a point where it will stabilize. Here it is going to stabilize. See on this top level. अगर हम डायग्राम में देखें तो ये हमारा जो टॉप लेवल है यहाँ पर इट इज़ गोइंग टू स्टेबलाइज, बट ये स्टेबलाइज करेगा सिर्फ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, राइट, एंड देन मूव टू द रिवर्स डायरेक्शन। और वो रिवर्स डायरेक्शन मीन्स इट इज़ गोइंग टू मूव टूवर्ड्स वेयर, टूवर्ड्स इट्स डाउनफॉल, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इज दैट क्लियर। सो बच्चे आई होप द पीक इज़ क्लियर। पीक पे जाते जाते, एक्सपेंशन से पीक पे जाते जाते सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थोड़ी स्लो डाउन हो जाती हैं, इनपुट प्राइसेस बढ़ने लगती हैं क्योंकि वहाँ पर स्कैसिटी अराइज हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी अटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, आउटपुट के प्राइजेस बढ़ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, कंज्यूमर्स अब अपना डिमांड कम करना शुरू करते हैं। एक्चुअल डिमांड हमारी जब कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली एक्सपेंशन स्टेज वहीं पे अब कम हो जाएगी और एंड हो जाएगी। पीक आता है, थोड़े टाइम के लिए स्टैग्नेट हो जाती है ग्रोथ, लेकिन स्टेबलाइज हो जाती है हमारी ग्रोथ, लेकिन देन वी स्टार्ट टू मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, and the next point is contraction. But do you know what is contraction? Let's draw it with the help of a diagram and explain what is contraction. Reverse action after peak is known as contraction. जब हम reverse आ जाते हैं after our peak period, that is known as what? Contraction. Let's see to it. Now I'm just going to explain it to you with the help of this diagram only. See to it, this time period, ये एरो जो मैं आपको शो कर रही हूँ, रिवर्स डायरेक्शन में जब हमारी ग्रोथ शुरू हो जाती है, इट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स अ डाउनफॉल। सी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, वी आर मूविंग डाउन। जब आप डाउन की तरफ मूव कर रहे हो तो दैट टाइम पीरियड इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट डू यू कॉल इट, यू कॉल इट कॉन्ट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? So बच्चे just try to understand, contraction arises since economy cannot continue to grow endlessly and indefinitely.
यू नो इट वेरी वेल। कोई भी इकोनॉमी है बच्चे, वो ना तो एंडलेसली ग्रो कर सकती है और ना ही इनडेफिनेटली ग्रो कर सकती है। इज़ दैट क्लियर? अब जब एक इकोनॉमी ना तो एंडलेसली और इनडेफिनेटली ग्रो करेगी, तो जब पीक एक बार रीच हो जाता है, इंक्रीज इन डिमांड हमारी हॉल्ट हो जाती है। हमारा जो डिमांड है वो अब सब कुछ तो था ऑलरेडी हमारे पास, हम लोगों ने अपनी डिमांड को थोड़ा सा कर्टेल कर लिया था राइट। और इतना ही नहीं, कई सेक्टर्स में तो हमारी डिमांड कम भी होने लग गई थी। So there is fall in the levels of investment and employment in an economy. What happens? हमारी इकोनॉमी के अंदर there is fall in the level of investments in an economy. Is that clear? अगर आप यहाँ पर ये बॉक्स के अंदर देख पा रहे हो तो there is investment और employment के अंदर थोड़ा रिडक्शन हो जाएगा, right? Producers do not immediately recognize. प्रोड्यूसर्स को इकोनॉमी की पल्स नहीं पता चलती। इज़ दैट क्लियर? कि हाँ सच्ची में इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ जा रही है। वो तो नॉर्मली जैसा प्रोड्यूस कर रहे थे वैसा प्रोड्यूस करते हैं। इज़ दैट क्लियर? राइट, क्योंकि उनको तो ये था, एंटिसिपेट किया था कि हमारी डिमांड का लेवल बहुत हाई रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन पैटर्न के साथ ज़्यादा आउटपुट को तो प्रोड्यूस कर दिया। इज़ दैट क्लियर? और ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करने के साथ साथ बच्चे, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, अब यहाँ पर ज़्यादा आउटपुट का लेवल हो गया, लेकिन इकोनॉमी में दूसरी तरफ से डिमांड ही नहीं है, तो डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो गया। जब डिमांड और सप्लाई मिसमैच होगा तो ओवर प्रोडक्शन होने लग गया, क्योंकि इतनी डिमांड नहीं है इकोनॉमी में जितनी कि पीछे से सप्लाई है। सो ऑटोमेटिकली एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो गई, और एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन होने के कारण से अब जो कमोडिटी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे सारे सेक्टर्स के ऊपर आ गया। द इम्पैक्ट इज़ रीचिंग टू वेयर? इट इज़ गोइंग टू रीच टू ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इज़ दैट क्लियर? वेयर इज़ द इम्पैक्ट गोइंग टू रीच? टू ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इज़ दैट क्लियर? सो बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी तक आपने क्या पढ़ा? कॉन्ट्रैक्शन का फेज शुरू जब होता है, इट कैन नॉट ग्रो, मतलब क्यों शुरू होता है? क्योंकि हम पीक पे हमेशा नहीं रह सकते हैं। सो जब आप एक बार पीक पे पहुंच गए थे तो आप लोगों को पता है कि हमारी डिमांड जो थी वो हॉल्ट हो गई थी। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम हो गए थे, और कई सेक्टर्स में तो हमने डिमांड भी कम करना शुरू कर दिया था, जिससे कि एडी का लेवल फॉल हुआ। अब एडी का लेवल फॉल होते ही देयर शुड बी द फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयमेंट। बट इतनी जल्दी प्रोड्यूसर्स को फील ही नहीं होता कि इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ जा रही है। तो प्रोड्यूसर्स तो अपने पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे। उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्शन कर ली क्योंकि डिमांड उनको लग रहा था बहुत ज़्यादा होने वाली है। दे आर एंटिसिपेटिंग ना, आपको पता है उनका जो बिहेवियर है वो बुलिश एक्सपेक्टेशंस का बिहेवियर है। सो ऑटोमेटिकली बच्चे व्हाट हैपन्स, यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आ गई, मिसमैच आ गया डिमांड और सप्लाई के बीच में। कंज्यूमर्स ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा सप्लाई कर कर बैठ गए। तो इस मिसमैच के कारण से अब कमोडिटी की प्राइसेस थोड़ा बहुत कम आएंगी, और ये वाला इम्पैक्ट जो होगा ये धीरे धीरे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, दूसरे से थर्ड सेक्टर, फिर पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर देगा। वेयर आर वी हेडिंग टू? वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ रिवर्स डायरेक्शन, टुवर्ड्स अ डाउनफॉल। और इस डाउनफॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन स्विंग बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, राइट। प्रोड्यूसर्स आफ्टर बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट, अब धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स भी अवेयर हो जाते हैं, और जैसे ही अवेयर होंगे बच्चे, एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट के लेवल को कम करने की कोशिश करेंगे। अब नए इन्वेस्टमेंट ये लोग नहीं करेंगे, जितना पुराना स्टॉक अवेलेबल है उसी को बेचने की कोशिश करेंगे। जो इन्होंने ऑर्डर्स दिए थे कि हाँ इनको ज़्यादा आउटपुट की प्रोडक्शन करने के लिए इन्होंने रॉ मटेरियल के ऑर्डर्स दिए थे, वो धीरे धीरे अपने ऑर्डर्स कैंसिल करना शुरू कर देंगे। अब बच्चे सी टू इट, जो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट लेबर रखी थी वो लेबर को क्या कर देंगे? ले ऑफ्स दे देंगे या जॉब से निकाल देंगे। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? अब कहाँ पे इम्पैक्ट आ गया? एक तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट का लेवल कम कर दिया। इन्वेस्टमेंट का लेवल कम करते ही बच्चे व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? वाई कम, आउटपुट कम, एम्प्लॉयमेंट कम। इकोनॉमी इज मूविंग टुवर्ड्स अ डाउनफॉल, डिप्रेशन की सिचुएशन। इज दैट क्लियर? राइट। सो बच्चे व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ? हमारी इकोनॉमी के अंदर थर्ड पॉइंट से रिलेटेड वाई क्यू एन एन इज गोइंग टू डिक्रीज इन एन इकोनॉमी। मतलब इनकम कम है तो ऑब्वियसली आउटपुट कम प्रोड्यूस करोगे।
अब आउटपुट कम प्रोड्यूस करना है तो लेबर की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, तो इकोनॉमी के अंदर वाई, क्यू और एन का लेवल कम हो जाएगा. इज दैट क्लियर? So बच्चे, what is going to happen? Such corrective action by producers generate a reaction in the input markets. What is going to happen? अब यहाँ पर markets के अंदर एक reaction निकल कर आने वाला है. Is that clear? Right? Raw materials कम हो जाएंगे, cancelling हो जाएगी. Is that clear? This is a turning point and this is particularly the beginning of recession period. कौन सा पीरियड आ गया यहाँ पर? रिसेशन. क्योंकि एक प्रोड्यूसर से दूसरी मार्केट भी तो इम्पैक्ट हो गई. प्रोड्यूसर ने रॉ मटेरियल्स मार्केट के अंदर कहा आई डोंट वांट मोर रॉ मटेरियल्स, मुझे अपने प्रोडक्शन का लेवल कम करना है. लेबर मार्केट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गई, प्रोडक्शन का लेवल कम हो गया, लेबर मार्केट इफेक्टेड हो गई. और इतना ही नहीं, हमारी पूरी की पूरी मार्केट के अंदर जो जीडीपी जनरेशन थी वो भी कम होने लग गई. इज दैट क्लियर? सो दिस पीरियड is particularly a period of contraction and a downswing. Right? Now, let's move ahead, bache. We move ahead towards the next point. What is going to happen now? Just try to understand. Automatically, the decrease in demand pulls the input prices also down. Income of wages, interest earners gradually decline, resulting in decreased demand of goods and services. This is what we had actually taken up, isn't it? कि हमारी यहाँ पर क्या हुआ, जब इनपुट डिमांड कम हो गई, इनपुट प्राइसेस भी कम हो गए, इनकम ऑफ द वेजेस भी कम हो गई क्योंकि वेज इनकम भी कम हो जाएगी कंज्यूमर्स की, इंटरेस्ट अर्नर्स की भी यहाँ पर इनकम पे इफेक्ट आ गया, तो ऑब्वियसली रिजल्टिंग इनटू डिक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होगी ना मार्केट में, वो भी कम होने लग गई. इज दैट क्लियर? बच्चे, अब व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? लेकिन प्रोड्यूसर्स को तो कुछ सामान तो अपना बेचना ही था, क्योंकि उन्होंने भी तो लोन्स वगैरह ले रखे थे, तो वो लोन्स वगैरह की पेमेंट्स कहाँ से करेंगे? तो प्रोड्यूसर्स ने क्या करना शुरू किया? प्रोड्यूसर्स लोअर द प्राइसेस टू डिस्पोज ऑफ देयर इन्वेस्टीज. जितनी भी इन्वेंटरीज थे प्रोड्यूसर्स के पास, जो भी स्टॉक अवेलेबल था, प्रोड्यूसर्स ने उसको लोअर प्राइस कर कर बेचना शुरू कर दिया. इज दैट क्लियर? लेकिन व्हाट डू यू थिंक, क्या कोई ख़रीदने आएगा? बहुत कम लोग होंगे जो कि खरीदेंगे. कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट मोर डिक्रीज, कंज्यूमर्स को लगेगा और डिक्रीज कर दो प्राइसेस को, एंड दे पोस्टपोन देयर परचेज. उनको पता है कि ये सिचुएशन सही नहीं है, मार्केट में डाउनफॉल की सिचुएशन है, प्रोड्यूसर अपनी कमोडिटी की प्राइस को और सस्ता करेगा ही करेगा. एंड व्हाट हैपन्स, कंज्यूमर्स अपनी डिमांड को पोस्टपोन करते रहते हैं, लीडिंग टू लो एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? कंज्यूमर स्पेंडिंग रिड्यूस हो जाती है, हमारा एडी का जो लेवल होता है वो जनरली कम हो जाता है. इज दैट क्लियर? और जिसके कारण से इकोनॉमी में प्राइसेस और कम हो जाती हैं. अब बच्चे, डिस्क्रिपेंसी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई गेट्स वाइडेंड फर्दर. दिस प्रोसेस गैदर्स स्पीड और रिसेशन बिकम्स सीवियर. अब जब हमारी डिमांड और सप्लाई के अंदर गैप बहुत ज़्यादा आ जाएगा, सप्लाई इज़ देयर बट लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, राइट? क्योंकि उनको लग रहा है कि और प्राइसेस कम हो जाए तब वो खरीदेंगे, तो ऑब्वियसली डिप्रेशन की सिचुएशन और सीवियर हो जाती है, क्योंकि कहीं से इनकम जनरेशन ही नहीं है, लोग एक्सपेंडिचर ही नहीं कर रहे हैं. ना तो कंज्यूमर्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और ना ही प्रोड्यूसर्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. सो बच्चे, व्हाट इज़ हैपनिंग? इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन हियर. इन्वेस्टमेंट स्टार्ट डिक्लाइनिंग. इज दैट क्लियर? प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइंड. आई अगेन टोल्ड यू वाई. जितनी भी इकोनॉमी के हमारे पैरामीटर्स हैं, सारे के सारे पैरामीटर्स आर इफेक्टेड इन द वे व्हाट, इकोनॉमी के अंदर वाई इज़ लेस, देन आउटपुट इज़ लेस, एम्प्लॉयमेंट इज़ लेस, इन्वेस्टमेंट का लेवल इज़ लेस. इज दैट क्लियर? चाहे आपको कमोडिटी के प्राइसेस भी बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी लोग खरीद नहीं रहे हैं. इज दैट क्लियर? चाहे वो कोई भी गुड्स की मार्केट हो, कंज्यूमर गुड्स की मार्केट हो, प्रोड्यूसर गुड्स की मार्केट हो, कहीं पे भी ज़्यादा डिमांड नहीं है. इज दैट क्लियर? सो बिजनेस फर्म्स बिकम्स पेसिमिस्ट. अब इनकी जो अप्रोच है वो पेसिमिस्ट हो जाती है, ये और इन्वेस्ट नहीं करेंगे, राइट? एंड देयर इज़ फॉल इन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस विच इंड्यूसेस देम टू रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट. सो पेसिमिस्ट अप्रोच के अंदर डू रिमेंबर दैट द इन्वेस्टमेंट का लेवल इज़ गोइंग टू बी व्हाट, इफेक्टेड इन एन इकोनॉमी. No producer is going to invest in an economy now.
इज दैट क्लियर? और यहाँ पर जो बोरोइंग्स एंड इन्वेस्टमेंट है वो डिक्लाइन हो जाएगी, बैंक क्रेडिट श्रिंक्स। अब हम लोग कोई भी बैंक से जाकर क्रेडिट नहीं लेगा, क्योंकि बैंक से क्रेडिट लेंगे तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? इकोनॉमी में। अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी डिमांड नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर भी राज़ी नहीं है। इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इज एट द लोएस्ट पॉइंट हियर, डू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। यहाँ पर जो हमारा इन्वेस्टर है बच्चे, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल के ऊपर आ जाता है। स्टॉक प्राइसेस भी फॉल हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू इंक्रीज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लो लेवल है इनकम का, लो आउटपुट है, लो एम्प्लॉयमेंट है, ये सब अपने लोएस्ट लेवल के ऊपर हैं। सो अगर ये सब अपने लोएस्ट लेवल के ऊपर हैं, सो इकोनॉमी इज़ हेडिंग टूवर्ड्स विच सिचुएशन? इकोनॉमी इज़ हेडिंग टूवर्ड्स अ डिप्रेशन। इज दैट क्लियर? राइट? अब कॉन्ट्रैक्शन और डाउन टर्न के बाद लोएस्ट टर्न आने वाला है, एंड दैट इज़ नोन एज व्हाट? डिप्रेशन। इज दैट क्लियर? अभी तक तो रिसेशन चल रहा था, अब रिसेशन में सब कुछ लो हो रहा था, वाई कम था, आउटपुट कम था, एम्प्लॉयमेंट कम था, इन्वेस्टमेंट का लेवल कम था, लोग, स्टॉक प्राइसेस कम थे। इज दैट क्लियर? वेज रेट्स में फॉल आ गया, फैक्टर मार्केट्स में इम्पैक्ट आ गया। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज नोन एज ट्रॉफ, राइट? सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ ट्रॉफ नाउ. But what happens in a trough? Let's try to understand with the help of a diagram first of all. When I talk about a trough, bache, let's see. This is a trend line. Now just see to it. हमारे पास यहाँ पर we were Where are we? Where are we? We are at this lowest level. Which level? Lowest. This level is particularly known as what? Depression. What do you call this level as? Depression period. हम लोग अपनी इकोनॉमी के इस समय लोएस्ट लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं. The contraction or downturn continues till it reaches the lowest turning point, that is trough. हम किस पॉइंट के ऊपर हैं बच्चे? यू शुड रिमेंबर दैट वी आर टूवर्ड्स द लोएस्ट टर्निंग पॉइंट, एंड दिस लोएस्ट टर्निंग पॉइंट इज नोन एज व्हाट? ट्रॉफ. व्हेन द प्रोसेस ऑफ रिसेशन इज कंप्लीट, द सीवियर कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज pushes the economy into the face of depression. So आपको पता है जब रिसेशन का पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो सीवियर कंट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन जब होगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उससे हम लोग किस फेज़ में आ जाएंगे? डिप्रेशन के फेज़ में आ जाएंगे. डिप्रेशन इज़ अ सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन. डू रिमेंबर व्हाट इज़ डिप्रेशन? It is a severe form of recession and is characterized by extremely sluggish economic activity means low economic activity, बहुत ही कम इनकम, बहुत ही कम आउटपुट, बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी. अब यहाँ पर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन्स टू अ ग्रोथ रेट. हमारा जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी के अंदर, दैट ग्रोथ रेट बिकम्स ऑलमोस्ट नेगेटिव. Growth rate is almost negative, and national level and expenditure also tend to decline rapidly. I am telling you, very low level of income, very low level of output, very low level of employment. We are thinking about Great Depression. बच्चे Great Depression के अंदर आउटपुट को कोई भी खरीदने के लिए नहीं था. लोगों के पास कमोडिटी की प्राइजेस अपने लोएस्ट लेवल पे थी, पर फिर भी प्रोडक्शन आउटपुट जितना भी था उसको कोई खरीद ही नहीं रहा था. Is that clear? Right? So इतना लोएस्ट लेवल ऑफ इनकम था, इतना लोएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट था, पर उस आउटपुट को भी कोई खरीदने को तैयार नहीं था. Is that clear? So डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एकदम क्या हो जाती हैं? यू शुड रिमेंबर, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टेंड टू डिक्लाइन. Is that clear? और हम लोग किस तरफ हेड कर रहे हैं? अपनी कंपनीज़ को बंद करने के लिए, क्योंकि अब एक फर्म अपनी वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पा रही है. इतना ही नहीं, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ जाती है? बैंकरप्सी की प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि बच्चे आप लोग अपनी कॉस्ट ही नहीं रिकवर कर पा रहे हो. तो जब कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही है, चलो हर एक फर्म फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस तो सहन कर सकता है, बट नॉट द लॉस ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट.
जैसे एक फर्म को वेरिएबल कॉस्ट का लॉस होना शुरू होता है, वो फर्म अपनी कंपनीज को बंद कर देती है। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, बहुत सारी कंपनीज बंद होने की कगार के ऊपर हैं और बैंकरप्सी का लेवल तो बहुत हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, राइट। कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स एंड इवन द ड्यूरेबल इंडस्ट्री सफ़र फ्रॉम एक्सेस कैपेसिटी। What are they suffering from, बच्चे? They are suffering from excess capacity now. What is excess capacity? Excess capacity का मतलब है कि उनका पोटेंशियल तो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने का है, लेकिन अभी वो अपना आउटपुट लेवल कम प्रोड्यूस कर रहे हैं. What are they producing? A low output, very low output is being produced here. But now just try to understand what is going to happen. Unemployment increases to a greater extent. What happens? Unemployment increases, right? Leaving very little disposable income. There is fall in the interest rate. Banks खुलकर लोन देना चाह रही हैं, लेकिन अभी लोग पैसा लगाना ही नहीं चाहते. Why? क्योंकि जो people हैं, they are holding the cash. They say we don't want to invest the money in an economy. So बच्चे, despite the less interest rates, the demand for credit decline कर जाती है. What happens? The demand for credit declines in an economy. Is that clear? Right? क्योंकि अभी पेसिमिज्म का टाइम पीरियड चल रहा है. आपको पता है ना, दो तरह का बिहेवियर्स होता है, बुलिश एक्सपेक्टेशन एंड बेयरिश एक्सपेक्टेशन. बुलिश मीन्स ऑप्टिमिस्टिक एंड बेयरिश मीन्स इट इज़ पेसिमिस्ट. हम लोग पेसिमिस्ट होकर चल रहे हैं. वी आर थिंकिंग कि रिडक्शन है इन्वेस्टमेंट में. इन्वेस्टर इस समय बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है. वो यहाँ पर बैंकिंग और फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है. वो और इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा. क्लियर? सो यू शुड रिमेंबर बच्चे, एट द डेप्थ ऑफ डिप्रेशन, अब जब हमारा डिप्रेशन बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आ जाता है, हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, दे रीच टू द बॉटम पॉइंट एट दिस फेज. हम लोग बिल्कुल अपने बॉटम पॉइंट पे रीच हो जाते हैं. एंड यू शुड ऑल्सो रिमेंबर द ग्रेट डिप्रेशन was a very agonizing period causing loss of distress. बहुत ज़्यादा distress, lowest economy, lowest income, lowest output, lowest employment. So 1929 to 1933 was a worse period the whole economies had witnessed. Is that clear? Great misery and human suffering. So बच्चे, you should always remember that Great Depression was a worst period. Great Depression of 1929 to 1929 to 1933 was a worst period, and during that period there was human sufferings as all. Is that clear? Do you remember? Everything what was at its lowest level. Income, output, employment was at its lowest level. Which level? Lowest level. So you should always keep this point in your mind, right? Now बच्चे, अब इकोनॉमी कैसे रिवाइव होगी? वी हैव टू थिंक डिप्रेशन, वी आर एट अ लोएस्ट पॉइंट. आफ्टर एवरी बिजनेस साइकिल यू हैव एन अनदर वन. तो अब इकोनॉमी किस तरीके से थोड़ी सी अपस्विंग के अंदर आएगी, एक्सपेंशन की तरफ आएगी? लेट्स ट्राई टू चेक इट आउट. बच्चे, नाउ यू नो इट वेरी वेल, इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली. अगर इकोनॉमी एंडलेसली ग्रो नहीं कर सकती है तो एंडलेसली कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करेगी. कुछ ना कुछ यहाँ पर एक स्पर्ट मूवमेंट चाहिए जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड स्टार्ट मूविंग. इज दैट क्लियर? इकोनॉमी अब हमारी रिकवर करना शुरू करे. सो बच्चे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ. इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली. इट रीचेज द लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉल्ड ट्रफ एंड देन स्टार्ट्स रिकवरिंग. लेट मी शो इट टू यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल. राइट? व्हेन आई टेक आउट दिस डायग्राम, आपको पता है दिस इज़ योर ट्रेंड लाइन. इज दैट क्लियर? राइट? अब इकोनॉमी इज गोइंग टू मूव लाइक दिस. इज दैट क्लियर? अब दिस पॉइंट वॉज अ ट्रॉफ. इज दैट क्लियर? दिस पॉइंट वॉज अ ट्रॉफ, बट नाउ इकोनॉमी इज गोइंग टू हेड फर्दर. ग्रोथ इज गोइंग टू बी देयर इन एन इकोनॉमी. अपवर्ड स्विंग आने वाला इकोनॉमी के अंदर. इकोनॉमी रिकवर करेगी. और बच्चे, रिकवर कैसे करेगी? व्हेन देयर इज एंड ऑफ पेसिमिज्म इन एन इकोनॉमी. जब हमारी इकोनॉमी में पेसिमिज्म एंड हो जाएगा, ऑप्टिमिज्म आने लग जाएगा, देन द प्रोसेस रिवर्सेस. इज दैट क्लियर? द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल इज फर्स्ट फेल्ट इन द लेबर मार्केट. हाउ? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. वेरी इंपॉर्टेंट. कहाँ पर हमारा ये
ग्रोथ शुरू होता है? सबसे पहले जो ग्रोथ शुरू होगा, इट स्टार्ट्स इन विच मार्केट? इट स्टार्ट्स इन द लेबर मार्केट. Pervasive unemployment forces the workers to accept the wages lower than the prevailing wage rate. Producers anticipate lower cost and better business environment. अब हर कोई इसके अडेप्टेड हो जाएगा. वो कहेगा चलो ठीक है, अगर मुझे पहले 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से काम मिल रहा है, अब ये सिचुएशन चल रही है, इसमें मैं यहाँ पर 300 रुपीज़ पर डे में भी काम कर लूँगा. तो उनको भी लगता है प्रोड्यूसर्स को कि चलो बिजनेस कॉस्ट कम हो गई, लेट्स कुछ ना कुछ इकोनॉमी के अंदर अब इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, राइट. वो लोग हायर करना शुरू करेंगे, तो बिज़नेस कॉन्फिडेंस धीरे धीरे उनका इंक्रीज़ होना शुरू होगा. वो और ज़्यादा स्टॉक्स को बिल्ड करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे ऑर्डर्स देना शुरू करेंगे. गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट्स इकनॉमी के अंदर करेगा, जिससे कि इकनॉमी के अंदर ग्रोथ हो जाएगी. इतना ही नहीं, अब इंटरेस्ट रेट्स पे जो बैंक लोन्स देंगे वो बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर देंगे. जब बैंक इतना लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन्स देंगे बच्चे, ऑटोमेटिकली देयर वुड बी द ग्रोथ इन एन इकोनॉमी. इज दैट क्लियर? And then due to this technological advancements and due to the banking strategies, banking system, economy के अंदर एक turnover आ जाएगा from depression to expansion. Is that clear? So everybody is not heading towards a change. Business confidence आ गया. सबसे पहले लेबर मार्केट के अंदर थोड़ी मूवमेंट हुई. इन्होंने लेबरर्स ने लोअर वेज के ऊपर काम शुरू करना शुरू कर दिया. नाउ अब हमारे प्रोड्यूसर्स को लगा कि चलो ठीक है, सस्ते में लेबर मिल रही है तो क्यों ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें. वो भी लो रेट के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे. लोन्स भी तो बैंक सस्ते रेट के ऊपर देगा, तो ये भी तो वहाँ से क्रेडिट लेंगे. इज दैट क्लियर? थोड़ा सा लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. तो जैसे जैसे वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे बच्चे, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? नाउ स्लोली इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट का लेवल इज़ गोइंग टू इंक्रीज. व्हाट इज़ गोइंग टू इंक्रीज? इन्वेस्टमेंट. देन इन्वेस्टमेंट के कारण से इनकम जनरेशन आएगी. इनकम जनरेशन होगा तो आउटपुट का लेवल ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ग्रेटर अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इकोनॉमी स्पर्ट्स अप, स्टार्ट्स ग्रोइंग अप. इज दैट क्लियर? अब जब धीरे धीरे लोगों के पास पैसा आ जाएगा बच्चे, तो लोगों की जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है वो भी तो इंक्रीज कर जाएगा. Hence, economy is heading towards growth now. Where is economy heading towards? Growth. Unemployment fall हो जाएगी and expansion takes place in an economy. So this is how the economy is going to revive after the situation of trough. So trough की situation के बाद which situation comes? The situation of a bit expansion. The situation of recovery comes. Is that clear to you? So बच्चे, this was all about the phases of business cycles. Now in the tomorrow's lecture we are going to take up the indicators of business cycle. I wind up my lecture here.